बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started our second chapter and or unit number 11, sound. In the previous lecture, we have discussed about the introduction of this chapter, what are sound waves and how sound waves are produced. Today, we are going to prove the longitudinal nature of sound waves, and we are also going to prove that sound waves are basically mechanical waves. We will prove these two statements with the help of two experiments. Now, the first topic is waves require any medium for their propagation. यहाँ basically sound waves आएगा, ये waves लिखा हुआ यहाँ पर आपके पास sound waves आएगा, ठीक है. So sound waves require any medium for their propagation, and we know that from the previous chapter that the waves, such waves which require any medium for their propagation are known as mechanical waves. And there are further two types of mechanical waves: longitudinal waves and transverse waves. So we are going to prove that waves, sound waves are basically mechanical waves. So here is the activity, page number 21, activity 11.2. Unlike light waves, which are electromagnetic in nature, what are electromagnetic waves? Which do not require any medium for their propagation. Unlike light waves, which are electromagnetic in nature and can also pass through vacuum. Vacuum means no air present, no medium present, free space. Sound waves require some material medium for their propagation. Sound waves are mechanical waves, and mechanical waves require some medium for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus, figure number 11.5. The bell jar is placed on the platform of a vacuum pump. Basically, in this experiment, we have an apparatus in which we have a bell jar in which an electric bell is placed. So we have a bell jar, an electric bell is placed inside it, and this electric bell is connected with an electrical source, or we can say it as power supply. Just like in the previous chapter, in the ripple tank, to produce vibration, we connected the oscillating pedal or our ripple tank to a power supply. So in this case, the electric bell is connected with a power supply, which is basically an electric source to produce the electricity. And this electric bell is inserted in a container or a jar which is called as bell jar. And this whole apparatus is supported on a vacuum pump. Now, what is vacuum pump? Vacuum pump, the basic purpose of vacuum pump is to suck the air or to create vacuum in the jar. Basically, generally अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो आप घरों में वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं. वैक्यूम क्लीनर इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, ना यहाँ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एज वैक्यूम पंप को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको वैक्यूम क्लीनर का प्रिंसिपल बताना चाहूँगा कि उसमें क्या होता है. उसमें होता ये है कि उसमें आपके पास एक मोटर लगी होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा होता है, ठीक है, और अंदर एक पूरा आपके पास कंटेनर होता है. अब होता क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, उसका जो स्विच होता है वो लगाते हैं और उसे ऑन करते हैं, तो वो जो फैन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. जब वो रोटेट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एयर फील्ड होती है. वो जो एयर होती है वो एयर को कहाँ भेजता है, वो एयर को बाहर भेजता है, और एयर ट्रेवल करती है थ्रू द फैन, किसके जरिए, वाया थ्रू एन पाइप. ठीक है, आप वैक्यूम क्लीनर के साथ एक पाइप लगाते हैं, ठीक है. तो एयर क्या होती है, एयर का जब फैन मूव करता है, रोटेट करता है,
तो जो वो एयर का प्रेशर होता है फैन से आगे वो बहुत ज़्यादा हो, पूरे जो कंटेनर होता है उसमें एयर फिल होती है, तो फैन के पीछे और फैन के आगे दो जगह पर एयर का प्रेशर प्रेजेंट है। जब फैन चलता है तो आगे फैन के आगे एयर का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और एयर उसकी वजह से बाहर की तरफ मूव करती है। अब अंदर जो है प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वैक्यूम के बाहर, वैक्यूम क्लीनर के बाहर जो है वो एयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब जनरली हमें एक प्रिंसिपल पता है कि एयर जो है या कोई भी फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी चीज़, कोई भी फ्लूइड आपके पास है, एयर है या लिक्विड है, कोई भी, वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। सो होता ये है आपके पास कि जो वैक्यूम क्लीनर जब ऑन करते हैं उसका फैन जो है वो एयर मतलब रोटेट करता है, तो जो एयर का प्रेशर होता है वो अंदर आपके पास ज़्यादा होता है और बाहर जो होता है एयर प्रेशर कम होता है। तो एयर उस पाइप के ज़रिए क्या होता है, एयर पाइप के ज़रिए जाती है बाहर, और जो होती है वहाँ पर आपके पास बाहर जो एयर का प्रेशर होता है वो कम होता है आपके पास, ठीक है। सो होता ये फिर जो वैक्यूम क्लीनर का जो आपका आगे वाला हिस्सा है वो क्या कर लेता है, वो एयर को वहां से सक कर लेता है, एयर को अंदर की तरफ क्या कर लेता है, सक कर लेता है। जब एयर को अंदर की तरफ वो सक करता है, साथ साथ जैसे अगर आप फ्लोर पर कर रहे हैं या कारपेट पर कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर, तो जो एयर वहां पर है वो उन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर उनके साथ क्या होती है अंदर वैक्यूम क्लीनर के, उनको सक करके अंदर चली जाती है। सो फिर क्या होता है, उसके अंदर फिर एक पूरा मैकेनिज्म होता है, एक आपके पास एक फिल्टर होता है, डस्ट फिल्टर होता है, जो एयर होती है वो उस डस्ट फिल्टर में से आपके पास जो है पास कर जाती है, और बाकी जो होता है वो जिसे आप हाउस बैग भी बेसिकली कहते हैं, एक अंदर बैग सा लगा होता है, उसके अंदर आपके पास सारी जो डस्ट है या जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। होता यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि वैक्यूम क्लीनर जब आप कर रहे हो तो अगर बड़े पार्टिकल्स आ जाएं या बहुत ज़्यादा जो डस्ट है वो आ जाए उसके अंदर, तो उसकी मोटर की जो आवाज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चोक कर जाता है, जो एयर का पैसेज है, एयर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए फिर वो वैक्यूम क्लीनर का ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए फिर किया जाता है कि वो डस्ट का जो फिल्टर होता है, जो बैग होता है, उसे 1 या 2 हफ्ते बाद क्लीन भी कर लिया जाता है ताकि चोकिंग ना हो। सो ये था थोड़ा सा वैक्यूम का प्रिंसिपल कि वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, बेसिकली एयर को हम सक करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक जगह हाई प्रेशर होता है आपके पास और एक जगह लो प्रेशर होता है, ठीक है। सो वो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है एयर मूव करती है। इसी तरह यहाँ भी हम जो वैक्यूम पंप यूज करेंगे, बेसिकली जो वैक्यूम पंप है ये एक तरह का वैक्यूम क्लीनर ही है। इसने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक ये जो जार है पूरा बेल जार, इसमें से एयर को क्या कर लेना है, सक कर लेना है, एयर को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी अगर आप देखें, जो आप स्ट्रॉ यूज करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ड्रिंक्स को पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करते हैं, तो उसमें भी बेसिकली आप यही फिनोमिना अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। सो आपके पास ये एक पूरा अपरेटस है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक बेल है जो कि बेल जार के अंदर इंसर्ट है और वैक्यूम पंप है। अब होता क्या है, जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं, तो बेल क्या होती है, रिंग करना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो रिंग करेगी उसमें वाइब्रेशन, उसका हैमर वाइब्रेट करेगा, फिर क्या होगा, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस होगी, क्यों प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर अभी वैक्यूम पंप को हमने ऑन नहीं किया, अभी वैक्यूम पंप बंद है, हमारे पास से पावर सप्लाई ऑन है और बेल बज रही है। जब बेल बजेगी तो क्या होगा, आपके पास साउंड वेव्स जनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। साउंड वेव्स को कोई मीडियम चाहिए जनरेट प्रोपगेट करने के लिए, और वो मीडियम अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एयर, जिसकी वजह से बेल रिंग करी और हमें आवाज बेल की सुनाई देगी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो साउंड वेव्स हैं उन्हें कोई मटेरियल या कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। सो अब हम उस मीडियम को इस पूरे सिस्टम में से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अब वैक्यूम पंप का काम शुरू होगा आपके पास। हम वैक्यूम पंप को इंसर्ट करेंगे, उसे ऑन करेंगे, फिर क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर एयर है, इस सिस्टम के अंदर, इस ओवरऑल सिस्टम के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है, वैक्यूम पंप उसे क्या कर लेगा, सक कर लेगा, ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएट कर कर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर क्या होगा, जो है एयर
को वो क्या कर लेगा, सक कर लेगा। प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसको क्या करेगा, एयर को सक कर लेगा। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा, जब एयर सक हो जाएगी, सारी एयर को वो ले लेगा, तो इस पूरे जार के अंदर से जो एयर है वो खत्म हो जाएगी। देयर विल बी नो एयर प्रेजेंट इन दिस जार। सो व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो एयर और व्हेन देयर विल बी नो मीडियम फॉर द साउंड वेव्स टू प्रोपगेट। अब जब हमने सारी एयर को सक कर लिया, अब जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो वो हैमर तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वो तो अपना काम करेगा क्योंकि उसे एक सोर्स मिलेगा, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन हमें साउंड वेव्स सुनाई नहीं देंगी, हमें हियर नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज अब साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगी। उन्हें प्रोड्यूस होने के लिए या उन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर है, और वो मीडियम हमने अब वहां से निकाल लिया। अब एयर हमने यहां से निकाल लिया, अब हमने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एक फ्री स्पेस हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, साउंड वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा और साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है which proves that sound waves are basically mechanical waves which require any medium for their propagation. So अब एक्टिविटी को रीड करते हैं। An electric bell is suspended in the bell jar. इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड किया हुआ है किसके अंदर, बेल जार के अंदर। With the help of two wires connected to a power supply. इन दोनों वायर्स की मदद से इनको पावर सप्लाई के साथ हमने अटैच किया हुआ है और इन वायर्स की मदद से बेल को पावर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है। By setting on the power supply, electric bell will begin to ring. जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, रिंग करेगी। We can hear the sound of the bell. हम साउंड बेल की जो है वो हियर कर सकेंगे, सुन सकेंगे। Now start pumping out air from the bell jar by means of a vacuum pump. अब क्या करेंगे, अब हम पंप करेंगे, एयर को बाहर खींचेंगे with the help of vacuum pump. The sound of the bell starts becoming more and more feeble and eventually dies out. ठीक है, होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो साउंड की जो आवाज है वो धीमी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इवेंचुअली फाइनली क्या होगा, डाइज आउट। डाइज आउट का मतलब खत्म हो जाएगी। जब आहिस्ता आहिस्ता एयर उसमें से निकलती जाएगी, कम होती जाएगी, और एट लास्ट जब सारी एयर सक कर लेंगे तो फिर साउंड इवेंचुअली डाइज आउट। ऑल्दो बेल इज स्टिल रिंगिंग, लेकिन बेल जो है वो रिंग कर रही होगी, लेकिन हमें साउंड नहीं सुनाई देगी क्योंकि वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, उनको प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है उनके पास। When we put the air back into the jar, जब हम दोबारा एयर फेंकेंगे अंदर जार के अंदर, we can hear the sound of the bell again. फिर उन्हें दोबारा मीडियम मिल जाएगा, फिर हम साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। From this activity, we conclude that sound waves can only travel or propagate in the presence of air, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीडियम। इसका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ सकता है कि प्रूव दैट sound waves are mechanical waves. Prove that sound waves are mechanical waves with the help of an experiment. सवाल अगर आपने लिखना है तो आप अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं। नोट्स इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन तक पहुंच जाएंगे थ्रू व्हाट्सएप इन द फॉर्म ऑफ PDF. Prove that sound waves are mechanical waves. Prove that sound waves are mechanical waves with the help of an experiment. Prove that sound waves are mechanical waves with the help of an experiment. So this experiment proves that the sound waves are mechanical waves. ठीक है, उसमें आप पूरी ये जो एक्टिविटी है ये लिख दोगे, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख दोगे और लिख देंगे, और साथ में आपके पास डायग्राम भी बन जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये एक्टिविटी अंडरस्टैंड कर ली होगी आप। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि प्रूव करेगा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। उसके लिए हम क्या, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक ट्यूनिंग फोर्क चाहिए। रिमेंबर ट्यूनिंग फोर्क, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स। ठीक है, हम उसे स्ट्रक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह हम पता लगाते हैं, कल मैंने बताया था, या तो आप उसको अपने ईयर के करीब ले आएं, या एक टेनिस बॉल जिसको सस्पेंड किया हुआ स्प्रिंग के साथ उसके साथ टच करें तो वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, या उसको इंसर्ट कर दें इन द ग्लास ऑफ वाटर तो वाटर विल स्प्लैश आउट। ठीक है,
सो हम क्या लेते हैं, हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो साउंड वेव्स हैं दे आर बेसिकली टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव विच इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of the propagation of wave। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, उसके पार्टिकल्स की होगी, वेव्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की। अब हम क्या लेते हैं, हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोक में मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला प्रॉन्ग है, लेफ्ट प्रॉन्ग, या जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आपके केस में अगर राइट प्रॉन्ग होगा, ये वाले प्रॉन्ग को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये मिड वाला है हमारे पास ओ, और ये आगे जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है बी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्यूनिंग फोक को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक कर रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा बैक एंड फोर्थ। अब ये तो रेस्ट की पोजीशन में है जब इसमें कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। ये है एयर पार्टिकल्स, ये सारे क्या है आपके पास, ये हैं आपके पास एयर के पार्टिकल्स। सो होगा क्या, इस केस में अगर आप देखें, इस केस में तमाम जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम है, या यहां पर जो एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो सेम है। डेंसिटी रिमेंबर क्या थी, डेंसिटी थी मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये जो डेंसिटी है, अगर हम इसको जेनेरिकली देखें तो डेंसिटी एक कंसेंट्रेशन का यूनिट है, ये कंसेंट्रेशन को डिफाइन करता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम के अंदर कितना मैस है, ठीक है। ये एक कंसेंट्रेशन का यूनिट है। जैसे आपने केमिस्ट्री में मोलैरिटी पढ़ा होगा, मोलैरिटी भी कंसेंट्रेशन का एक यूनिट है। कंसेंट्रेशन को हम डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं मोलैरिटी, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो वो मोल सोल्यूट के एक खास वॉल्यूम में, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी भी एक खास नंबर है, एक खास मैस है, एक खास वॉल्यूम है। सो डेंसिटी को हम नंबर के लिए भी शो करते हैं। अब यहाँ पर एयर पार्टिकल्स की, क्योंकि डेंसिटी मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आपकी बुक में वर्ड डेंसिटी यूज किया, ठीक है। तो डेंसिटी को इन मायनों में आपने समझना है कि यहाँ पर नंबर को शो कर। अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ से। Propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in figure 11.6. Before the vibration of tuning fork, density of air molecules on the right side is uniform. वो कह रहा है कि राइट साइड पर अगर आप देखें तो डेंसिटी जो है वो एयर पार्टिकल्स की है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सेम है। यूनि मीन्स वन और फॉर्म मीन्स टाइप, एक टाइप की डेंसिटी है, सब इक्वल डिस्टेंस है सबके दरमियान, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है व्हेन द राइट प्रॉन्ग, ठीक है, इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद व्हेन द राइट प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी, रिमेंबर द मीन पोजीशन जहां पर आपके पास बॉडी रेस्ट पर होती है। तो वो कह रहा है कि जब आपके पास ओ से बी की तरफ मूव करती है, ठीक है, ये यहां पर आप इसको करेक्ट कर लें, ये बी आपके पास है और ये ओ है, ठीक है। अब वो कह रहा है जब वो ओ से बी की तरफ मूव करती है, जो आपका राइट प्रॉन्ग है, तो फिर क्या होता है, जब वो ओ से बी की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इस तरह है, ठीक है, ऐसे आपके पास ये ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। अब जैसे ही आप उसे वाइब्रेट कराओगे, जैसे ही आप उसे स्ट्रक करवाओगे, तो ये वाला जो प्रॉन्ग है ये आगे की तरफ मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा आगे की तरफ, ठीक है। जब आगे की तरफ ये वाइब्रेट करेगा तो फिर क्या होगा, आपके पास जो एयर के पार्टिकल्स इससे आगे प्रेजेंट हैं, ये उन पर क्या करेगा, ये उन पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी इसको मिली है वो उस एनर्जी को क्या कर देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो जब वो आगे करेगा ट्रांसफर, तो हमारे पास क्या बनना शुरू, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बड़ी तेजी से उनके अंदर ट्रांसफर होगी। जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इस पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगी वो जो वाइब्रेशन है, जो एयर के पार्टिकल्स। सो एयर के पार्टिकल्स एट सम इंस्टेंट क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। रिमेंबर कॉम्प्रेस हो जाएंगे तो हम इस रीजन को, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इस केस में मीडियम क्या है, इस केस में मीडियम है आपके पास एयर। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज टुगेदर हो जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है।
सो जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो उस रीजन को हमने क्या कहा था, कंप्रेशन, ठीक है, बिकॉज प्रेशर उन पर इंक्रीज हो जाएगा, जो राइट प्रोंग है वो अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, यही वो कह रहा है। When the right prong of tuning fork moves from mean position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecule. Adjacent कहते हैं साथ वाली, ठीक है, adjacent का मतलब होता है साथ वाली, बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, जब O से B की तरफ मूव करेगा तो जो adjacent एयर के उसके साथ बिल्कुल एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर वो क्या एग्जर्ट करेगा, उन पर वो एग्जर्ट करेगा प्रेशर। It exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produces a compression, क्योंकि वो जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज टुगेदर आ जाएंगे, जब वो क्लोज टुगेदर आ जाएंगे तो वो एक कंप्रेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा जब तक वो मीन पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा, तो ये वाला जो आपके पास एयर का मॉलिक्यूल है ये एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, इस तरह वो आगे, इस तरह वो आगे, और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक वो बी से दोबारा वापस नहीं आ जाता, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि वो जो एयर की लेयर जिसपे उस ट्यूनिंग फोर्क ने उसको कंप्रेस किया है वो कंप्रेस होगी और फिर वो आगे सारी जो कंप्रेशन है उसे क्या करती जाएगी, ट्रांसफर करती जाएगी। A moment later, the prong begins to move from B towards A. अब वो कह रहा है कि होगा क्या, उसके बाद B से जब वो दोबारा O की तरफ जाएगा और जब A की तरफ वो जाएगा prong, ठीक है, मीन पोजीशन O से B की तरफ गया और जब वो B से A की तरफ जाएगा फिर क्या होगा, now the pressure in the adjacent layer decreases and a rare fraction is produced. अब क्या होगा, जब वो वापस आएंगे, ठीक है, तो वो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो, क्योंकि उसने देखे ना जब स्ट्रक किया और वो इस तरह आया तो कंप्रेस कर दिया, जब वो वापस जाएगा दोबारा, जब वो दोबारा वापस जाएगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स दोबारा क्या होंगे, इस वक्त जब वो इधर था तो प्रेशर बहुत ज्यादा था उन पर, जब वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन से और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाएगा तो वो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा डिक्रीज हो जाएगा और आपके पास दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो इस तरह था, पहले तो यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, फिर राइट पर हुआ कंप्रेस हो गए, फिर जब दोबारा लेफ्ट पर आया तो फिर कंप्रेस नहीं हो गए बल्कि क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए, जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया और क्या हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए, ठीक है। आपको पता है जब हम किसी चीज पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस हो जाती है और जब एक्सपैंड होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो इन दिस केस जब वो दोबारा पोजीशन ए की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके पास एक्सपैंड हो जाएंगे, और एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, फार अपार्ट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे को, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उन रीजन्स को हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी थी, स्लिंकी स्प्रिंग का जब हमने वो पढ़ा था सिस्टम, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पुश पुल में कंप्रेस हो रहे थे और एक्सपैंड हो रहे थे, तो कंप्रेस वाला जो रीजन था वो था कंप्रेशन और जो एक्सपैंड वाला रीजन था वो था रेयर फ्रैक्शन। सो अ मोमेंट लेटर द prong begins to move from B towards A. Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rare fraction is produced. This rare fraction is transferred to the air layer next to it and so on. जैसे compression में adjacent layers पर आगे प्रेशर या कंप्रेशन ट्रांसफर होता गया था, इसी तरह वो जो रेयर फ्रैक्शन है जब वो दोबारा बी ए की तरफ जाएगी तो वो रेयर फ्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी और हर पार्टिकल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर वो फार अपार्ट हो जाएंगे। As the tuning fork moves back and forth rapidly, अब होता क्या है, तो मैंने बड़ा ये स्लो मूवमेंट में आपको समझाया, ये होता बहुत तेज है प्रोसेस, कि जैसे आप उसको स्ट्रक करते हो तो बड़ी तेजी के साथ वाइब्रेट करता है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। तो ये जो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन है मिली सेकेंड्स के इंटरवल में क्रिएट होते जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, क्रिएट होते जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, ठीक है। सो एज द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, मतलब तेजी से, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन, यानी कि पहले कंप्रेशन फिर एंड रेयर फ्रैक्शंस आर क्रिएटेड इन द एयर, बिकॉज एयर इज द मीडियम in this case in which the sound waves are propagating. In this way sound wave propagates through the air.
अब हमने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूफ कर दिया कि साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इसका सवाल भी इस तरह आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस के प्रूव दैट साउंड वेव्स आर longitudinal waves. Prove that sound waves are longitudinal waves with the help of an experiment. So उसमें भी आप ये experiment लिखोगे और diagram जो है वो साथ बनाओगे, ठीक है। As in the figure 11.6, the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. यानी कि वो जो wave generate हो रही है या sound waves produce हो रही हैं वो उसी direction में produce हो रही हैं जिस direction में जो पार्टिकल्स हैं एयर के मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज इट प्रूव्स दैट दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिस शोज द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव compressions or rare fractions is the wavelength of a sound wave. Remember wavelength, in case of longitudinal waves, the consecutive distance between two compressions or rare fractions is called wavelength. और transverse waves में two consecutive crust और trough क्या थी हमारे पास, wavelength, ठीक है। So wavelength of sound wave क्या होगी, consecutive distance between two compressions and और rare fractions, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मैकेनिकल वेव्स की जो नेचर थी साउंड की उसको प्रूव किया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज लाउडनेस। नाउ व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज बेसिकली, अगर आप इसे जो है सिंपल वर्ड्स में देखें तो लाउडनेस का क्या मतलब है? लाउडनेस का मतलब होता है ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलना, या जिसे हम चीखना भी कह सकते हैं। चीखने के मानों में इतना नहीं आएगा, लेकिन लाउड साउंड होने का मतलब क्या होता है कि आवाज़ की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। अब जनरली डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी, अच्छा ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसका सवाल किस तरह आता है? इसका सवाल आता है डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड। जब नोट्स आपके पास आ जाएंगे उसमें सवाल लिखा होगा, लेकिन अगर अभी आप सवाल लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन व्हाट फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन व्हाट फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। कुछ फैक्टर्स भी हैं जिनमें लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? पेज नंबर 22, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। खसूसियत, ऐसी खसूसियत है साउंड की बाय विच, जिसके जरिए लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कौन सी साउंड्स में लाउड और फेंट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। अब लाउड का होना मतलब ये है कि बहुत बुलंद आवाज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, एम्पलीट्यूड हाई है उसका। और फेंट, या फेंट को हम कहते हैं मध्यम, ठीक है, बहुत जो है हल्की आवाज़। सो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस साउंड की जिससे हम लाउड और फेंट साउंड को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है नीचे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में लाउडनेस की हेडिंग देनी है और उसकी डेफिनेशन लिख देनी है जैसे यहाँ बुक में लिखी है। फिर नीचे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। ये व्हेन वी टॉक से पहले हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वॉइस इज लो, बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज लाउड। ये जनरली आपने देखा होगा, जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इस वक्त तो खैर स्टूडेंट्स नहीं है, मैं कैमरे के सामने लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ लाउड है ताकि जब आप वीडियो को देखें तो आपको आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे, इसलिए मैं लाउड बोल रहा हूँ। अगर मैं बहुत कम जो है मध्यम या बहुत जो है हल्की आवाज़ में बोलूँगा तो फिर आपको आवाज़ वीडियो में भी सुनाई नहीं देगी, ठीक है। इसी तरह अगर तो मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ज़्यादा होगी, लाउड होगी, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड या उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं वैसी बाहर या घर में किसी से बात कर रहा हूँ तो अगर मैं
जो है वो लाउड बोलना शुरू कर देंगे, सब तो मुझे कहेंगे कि ये तो इसको पता नहीं क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, ये इतना लाउड बोल रहे। सो वो यही कह रहा है कि जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ लो होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है या वो इतनी लाउड नहीं होती। लेकिन जब आप पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, आपने जलसों में देखा होगा जब वो बोल रहे होते हैं तो उसमें भी वो लाउड बोलते हैं ताकि सबको आवाज़ है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाए। उसके बाद है जी, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनमें हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है उनका। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। रिमेंबर एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। ठीक है, इस केस में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वेव की। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वेव की, यानी कि मैक्सिमम कहां तक वेव की पीक जा रही है वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करके आ गए। सो अगर तो एम्पलीट्यूड आपके पास लार्ज होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होगा तो उसमें उतनी ही ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है कि जो बुक में उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है वो सितार की दी हुई है। सितार आपके पास एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसने कहा है कि अगर जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं उनको आप बहुत जोर से वाइब्रेट करवाते हो, ज्यादा एनर्जी देकर वाइब्रेट करवाते हो, ठीक है, तो आपके पास जब ज्यादा एनर्जी पीछे से मिलेगी उसको तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जब ज्यादा एनर्जी दोगे तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप मेरी आवाज को इन द फॉर्म ऑफ वेव कन्वर्ट करो तो आपको, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत जो है लाउड बोल रहा हूं, तो मेरी जो आवाज है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगी। उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। सो इसका मतलब ये है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। सो सितार की एग्जांपल में मैं बता रहा था कि अगर आप बहुत वायलेंटली या बहुत एनर्जी के साथ उसकी जो स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करवाते हो तो उनका एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। जब उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वो उतनी ही लाउडनेस आपके पास प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो बेसिकली लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितनी लाउडनेस ज्यादा, जितना आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड ज्यादा उतनी लाउडनेस ज्यादा, जितना एम्पलीट्यूड कम उतनी लाउडनेस कम। ठीक है, एम्पलीट्यूड बेसिकली वेव का होता है और वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। डायरेक्टली का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार विल बी लाउड। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। ये लाइन लिखने के बाद द साउंड प्रोड्यूस पर हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल की, इसी के अंदर सब हेडिंग बन जाएगी एग्जाम्पल की। द साउंड प्रोड्यूस, ये तो हो गया। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार विल बी लाउड इफ यू प्लग इट्स वायर्स मोर वायलेंटली। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। इसी तरह जो ड्रम होता है आपके पास या जो ढोल होते हैं उनको अगर आप जोर से वाइब्रेट कराओगे या जोर से उसके ऊपर स्ट्रक करोगे किसी भी चीज की मदद से तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये आप कर भी सकते हो। आपने देखा होगा शादियों वगैरह में जो ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होते हैं तो बड़ी वायलेंटली जो है उसको स्ट्रक करते हैं, जो उसकी सरफेस होती है ड्रम की, उसके जब वो वायलेंटली ज्यादा वायलेंटली स्ट्रक करते हैं तो जो पास लोग होते हैं उन्हें जरा वो इरिटेट भी करती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। जब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है तो लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्रिएट होती है। सो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल, एक तो सितार की और एक ड्रम की आ जाएगी कि हम जब ज्यादा एनर्जी के साथ उसे स्ट्रक करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और फिर एज अ रिजल्ट लाउडनेस भी ज्यादा हो। सेकंड फैक्टर है आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अगर तो वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जिस पे साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हो आप, अगर तो उसका एरिया ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम वो ढोल वाली लेते हैं कि अगर तो आप छोटा एक ढोल है, कोई ड्रम है, उस छोटे पर जिसका साइज छोटा, एरिया छोटा, उस पर आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप बड़े ढोल पे या बड़े ड्रम पर स्ट्रक करोगे तो उस पर लाउडनेस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बिकॉज जो है मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे,
उस मीडियम एक छोटे वाले ड्रम में उस मीडियम में मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट होंगे। मतलब अगर एक आपके पास छोटा ड्रम है उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास वाइब्रेट होने के लिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसमें 100 मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करें, लेकिन एक जो बड़ा ड्रम है उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड जब मिलेगा साथ में, मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स के एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे बनिस्बत के वो जो 100 मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे उनका एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो जितना ज्यादा आपके पास एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतना ही आपके पास लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। सो एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। एरिया ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, एरिया कम, लाउडनेस भी कम, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, sound produced by a large drum is louder than that by a small one because its large vibrating area. If we strike a tuning fork on a rubber pad, a feeble sound will be heard. But if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of a bench, we will hear a louder sound. इसमें वो कह रहा है कि एक अगर आपके पास रबड़ पैड है छोटा, उस पर अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्रक करते हो तो आपको एक धीमी आवाज सुनाई देगी, एक कम आवाज सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बेंच की सरफेस पे उस ट्यूनिंग फोर्क को जो है स्ट्रक करते हो तो आपके पास जो लाउडनेस है या जो साउंड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इससे भी ये भी एक और एग्जांपल है जिससे आपको पता चला कि अगर एरिया बढ़ा देंगे आप वाइब्रेटिंग बॉडी का तो आपके पास लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। So from this we can conclude that the loudness increases with the area of the vibrating body and vice versa, ठीक है। vice versa का मतलब होता है कि अगर आप एरिया बढ़ा दो और लाउडनेस इंक्रीज हो जाए, vice versa का मतलब इससे उलट भी अगर आप कर लो, लाउडनेस बढ़ा दो तो आपके पास वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड लास्ट है, वैसे यहाँ पर लास्ट है आपके पास बुक में, लेकिन इसके अंदर एक और भी फैक्टर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास वही है कि अगर आप किसी फंक्शन में शादी पर जा रहे हैं किसी, ठीक है, और ढोल बज रहा है, अगर तो आप उस जहां पर वो वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब है जहां पर ढोल बज रहा है, अगर आप उससे दूर चले जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉल के जो अंदर हॉल होता है उसके अंदर ढोल बज रहा है, आप बाहर चले जाते हैं, पार्किंग में चले जाते हैं, तो आप जैसे जैसे उस हॉल से पार्किंग की तरफ जाएंगे, जो साउंड है ढोल की जो कि आपके कानों में बहुत वॉयलेंटली आ रही थी जब आप हॉल में थे, लेकिन जब आप पार्किंग वाली साइड पर जाओगे तब आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड क्या होती जाएगी, फेंट होती जाएगी, ठीक है, धीमी होती जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, कि आप जाओ और देखो जब आप उसके पास होगे तो आपको ज्यादा साउंड लाउडनेस सुनाई देगी, और जैसे जैसे, क्योंकि उस वक्त आपके दरमियान और उस ढोल या वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको उसकी आवाज कम सुनाई देगी। सो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है वाइब्रेटिंग बॉडी और लिसनर के दरमियान तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनवर्स है ना, एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज कम हो जाती है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी अगर ज्यादा होता जाएगा तो लाउडनेस कम होती जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर कम हो जाएगा, मतलब वो करीब आ जाओगे आप उसके वाइब्रेटिंग बॉडी के, तो लाउडनेस ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो इसको हम रीड करते हैं। लाउडनेस ऑफ अ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance, ठीक है, क्योंकि आप जो सुन रहे हो आवाज उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, आपके मुताबिक कम होता जाएगा जैसे ही आप उस वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर मूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लास्ट, ये बड़ा आसान चीज थी, इसको आप मैंने आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देकर इसको समझा दिया। लास्ट फैक्टर है आपके पास, इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें। लास्ट फैक्टर, इसने हेडिंग नहीं बनाई हुई बुक वाले ने, लेकिन लास्ट आप हेडिंग बना लें। जो फोर्थ फैक्टर आपके पास वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। इसमें वो क्या कहता है देखते हैं।
लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर, कि जो लिसनर है जो कि आवाज़ सुन रहा है उसकी ईयर की क्या फिजिकल कंडीशन है, लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करती है। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि जो सेंसिटिव ईयर्स वाला है, जिसकी सेंस बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी जल्दी सेंस कर जाता है, उसको वो जो आवाज़ है वो लाउडर सुनाई देगी। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जैसे अगर कुछ एजेड हो जाते हैं, बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उन्हें जो है वो ज़्यादा ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, बिकॉज फिजिकल जो कंडीशन है आपके पास ईयर की, उनकी उम्र के साथ साथ वीक होती जाती है, तो इसलिए लाउडनेस जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पर भी डिपेंड कर रही है। सो जैसे जैसे एज के साथ साथ फिजिकल कंडीशन वीक होती जाएगी, वैसे ही उन्हें ज़्यादा लाउडर सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर उम्र कम है तो उसमें आपको, अगर आप ज़्यादा भी बोल दो, क्योंकि उस केस में सेंसिटिव होते हैं ईयर्स, ठीक है, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं गुजरी होती, तो अगर आप हल्का भी बोलोगे तो ऐसा लगेगा बड़ा तेज़ बोला है, बड़ा ऊंचा बोला है आपने, तेज़ नहीं बल्कि ऊंचा बोला है। सो सेंसिटिव ईयर्स वाले जो होंगे, ईयर्स वाले होंगे, उनको जो आवाज़ है वो लाउडर सुनाई देगी देन द पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। डिफेक्टिव, जिनका डिफेक्ट है कोई ईयर में, उन्हें ऊंचा सुनाई देगा। ठीक है, however there is a characteristic of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener and is called the intensity of sound। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे। यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है? डिफाइन लाउडनेस, ऑन व्हाट फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल वो पब्लिक गैदरिंग और फ्रेंड्स वाली लिखनी है जो कि मैंने आपको बताई। उसके बाद ये हेडिंग बनानी है, फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स। उसमें तीनों फैक्टर्स लिखने हैं। पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बताना है कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में डायरेक्ट रिलेशन। फिर उसमें दो एग्जाम्पल्स देनी है, एक सितार एग्जाम्पल की हेडिंग देकर, एक सितार वाली एग्जाम्पल और एक ड्रम वाली एग्जाम्पल। फिर सेकेंड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहां भी बताना है पहले कि लाउडनेस वेरीज डायरेक्टली विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, उसमें आपने जो है वो बता देना है, जो दो एग्जांपल्स, एक ट्यूनिंग फोर्क वाली और एक ड्रम वाली, एग्जांपल की हेडिंग देकर। लास्ट सेकंड लास्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें भी बताना है कि ये इन्वर्सली रिलेट करते हैं दोनों, और फिर इसमें भी वो आपके पास एग्जांपल आ जाएगी अगर आप वो ड्रम वाली दो। लास्ट, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। इसमें भी आपने बता देना कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, और जो लाइन लिखी हुई थी डिफेक्टिव और सेंसिटिव ईयर्स वाली, वो एग्जांपल में इसकी आ जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर चीज मिस हो गई। अगर यहाँ पर देखें, मैंने शो किया हुआ लार्ज एम्पलीट्यूड को मैंने बताया हुआ है वो साउंड क्या है, लाउड, और जिसका एम्पलीट्यूड कम है जिस साउंड का, वो क्वाइट है। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड होगी तो ज्यादा लाउड सुनाई देगी, अगर कम एम्पलीट्यूड की साउंड होगी तो वो कम लाउड या क्वाइट सुनाई देगी। ये फिगर 11.7 में भी लिखा हुआ है। ये डायग्राम आप इस एम्पलीट्यूड वाली हेडिंग में बना सकते हो। इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, अगर आप ये डायग्राम भी इस हेडिंग के साथ बना देते। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू हो, ठीक है, बेसिकली ये जो आपका था, ये आपका वर्क फॉर डे 4 है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन ये आपका क्या है, ये वर्क फॉर डे 4 है। लास्ट जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल नेचर, जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर और मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, वो वर्क फॉर डे 3 था, और लाउडनेस ऑफ साउंड आपके पास वर्क फॉर डे 4 है। सो वर्क फॉर डे 4, वर्क फॉर डे 3 का आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी मसला, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ नंबर, थ्रू अ व्हाट्सएप नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। you will contact us through an image, टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।